Hello everyone, we'll be starting now. So thank you for being here. And this is the 20th seminar we are having. And there's a lot of informative and exciting stuff for you. Before we'll start with the new joinees. We have expanded our family and we have some new people joining us. So we'll start with the introduction first. First we have Muskan. Please, if you would. Okay, so my name is Muskan Saraf. I am a CA finalist. I've cleared both of my groups in July 21 attempt. I have already completed about 10 months of my artworkshop in a mid-sized firm in Kolkata. I am not from Kolkata actually. I belong to Devghar, Jharkhand. It's a very good place. You all should visit. Um, I have interest in sketching, singing. I also play ukulele. It's a it's an instrument. It's like somewhat guitar. So yeah, that's it. Thank you, Muskan. Next we have Aditi. Please. Hello everyone. My name is Aditi Sahu. I am from Bihar. I am from Sasaram, Bihar. I have completed my higher secondary education from Varanasi and graduation from Calcutta University. I have cleared my Group 1 examination in December 21. Now I will appear for Group 2 in November 22. Uh, I like dancing and traveling. That's all. Thank you. So before introducing you to all our guest speakers, I have something to say that she clearly justify her name. That dreams turn into reality only when you have Nishtha in yourself. So let's welcome All India ranker, C Intermediate All India ranker 2, Nishtha Bothra, among us, who is a gold medalist in yoga and gymnastics. A Bharatanatyam dancer who loves to participate in various activities ranging from yoga to MUN and debates. She also tries to miss an opportunity. She never tries to miss an opportunity to learn something that can give her a new perspective. Not just a bookworm, but in her free time, she likes to watch web series and listen to music that gives her joy. So let's have a huge a round of applause to her. Hello everyone. Firstly, thank you to Neeraj sir and JP and our family for having me here and giving me the opportunity to share my experience and whatever helped me to secure this achievement. Okay, so what was your and your family reaction when you have secured All India Rank 2? I was not able to believe them because I myself did not check my results. So I was in the washroom. I was waiting since 4 hours for the results, but since it did not come till 9:30, then I thought that I'll go and have a shower. And when I was in the shower, the results came, and everyone outside the washroom was screaming AI2, AI2, and I was not expecting it at all. So I was not ready to believe them. Then they told me to just take my phone because I got a call from the ICA president. And when I talked to him, then I believed that yes, this has happened, and now I have to go out. And when I came out, everyone, like, all my mom, my sister, and everyone there were in tears, and even I was in tears. And I, literally speaking, I did not check my results for 1 2 hours. I was just on calls and I was just crying. But yes, this that moment will be cherished forever, and I will never be able to express it in words clearly. What was the exact feeling at that moment? Okay, so were you expecting an All India rank in CA Intermediate? Not AI 1, 2, 3. I don't think anyone can expect that. Yes, I was expecting it between 20s to 50s. My papers went good. Only one of my paper was not good. But I was like, इसमें 40 पे मिलेगा तो I'll get a rank because the 7 papers are very good. But yes, 1, 2, 3. I don't think anyone can expect because I believe that 1% there is a luck factor in getting top 3. But yes, I was sure that I'll get between 20s to 50s. Okay, so I have read somewhere that you have deferred an attempt. So can you elaborate on that?
My intermediate journey started back in August 20. The reason being, my foundations were in May 20, but the term got cancelled. And I was studying for foundations in 6-7 months. It's a bit similar to class 11 and 12. And COVID था तो I was not able to go out also, and सब series and all सब हो गए थे complete. So I was very bored and बहुत monotonous हो गया था. So I thought let me give a break to foundation. Since the term got cancelled, I started in the month July 20 and August 20. I gave it to Group 1 accounts. So intermediate journey started from July 20, that is before my foundation exams. Then 2-3 months I studied for inter, and then again I back went to foundation. And फिर January से after the exams 15-20 days मैंने break लिया and I started for preparing for inter. But towards September, classes were completed and I appeared for mock tests also. But November 15 को मेरी own बहन की शादी थी. But वो मैं prepared थी already कि मेरे को exam देना है and सब कुछ हो गया था. जैसे ही मैं बाहर से आई, I was not able to write. My hands were shivering and mental health भी थोड़ा it was not stable. So I thought let's defer the term because already 1 year का the मतलब मेहनत waste हो जाती. ऐसा feeling आता है because the last 15 days before the exams, I was not able to give my 100%. I was not able to write. So I made a decision, let's defer the term. And then December, January, COVID हो गया and तबीयत भी खराब थी and obviously procrastination factor भी आ गया कि अभी तो time है तो नहीं, let's wait. But then February first week, I realized that the reason I deferred my term was because I wanted to, do justice to my work which I have done, the amount of hours I have put in for studies. So I thought that February से again full on पढ़ाई start की. February, March, April, mid-May में हुआ exams and then that's it. Okay, so बहुत जन का यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि जैसे लोग सोशल मीडिया से डिटॉक्स ले लेते हैं राइट एग्जाम्स के पहले, तो क्या आपने लिया था? मैंने लिया था. Not only before the exams, from mid-February when I decided I have to get back on track. Mid-February से May 30 तक I deactivated all my social media accounts. And even during the preparation, I decided to sometimes take a break from social media. Okay, so आप कुछ अपना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो बताना चाहते हैं यहाँ पे? Okay, so the intermediate journey three phases होते हैं. पहले होते हैं classes वाली phases, फिर होती है self study and then comes the 1.5 day before the exam and the exam day. So what I did was I did not rush through the classes. I was prepared कि पहले I'll just do 3 classes each day and at least 2-3 hours I'll take it out for my self study. Because बिना क्लियर करे कॉन्सेप्ट्स आगे क्लासेस करने में कोई यूज नहीं है. बिकॉज आई बिलीव कि अगर सेम चीज अगर आप सेम डे पे पढ़ लो क्लासेस की या विद इन अ वीक पढ़ लो तो उसमें कम टाइम लगेगा रादर देन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द क्लासेस एंड देन स्टार्टिंग योर सेल्फ स्टडी फ्रॉम स्क्रैच. So my first, what I share with all my juniors and people who ask me for my strategy, I tell them that don't differentiate classes के phase and self study. Do it simultaneously. Classes अगर the period मतलब what the psychological thinking people have in them that classes जल्दी से जल्दी खत्म कर दो तो एक satisfaction मिल जाएगा कि yes classes तो हो गई अब. But उसके बाद जो self study phase है वो लंबा हो जाएगा if you just rush through the classes. So do the classes and the self study simultaneously. It will be more effective. Second, appear for mock tests. Like you have to appear for mock tests because mock test is not for testing whether you know or not, but how you approach a paper, how you go through the paper. वो 3 hours 15 minutes का कैसे use करना है, how to approach a difficult question paper. कोई easy paper आ जाता है उसमें कैसे करना है. If you get an extremely difficult question, how to approach that question. So these all things will ये सब हम लोग mock test दे के ही सीखते हैं. So second is giving mock test as like at least 2 mock tests for each paper. And third is just stick to the ICI material and the RTP, MTP and past year papers. So this was what I did majorly for during my intermediate journey. So okay, my co-convener would like to ask some question to you. Hi Nishna, I'm Rishabh Sharma. My question to you is how does a rank holder studies differently than regular student? So firstly, when I was studying, I did not know that I'll be a ranker because I did not get a top 3 or top 10 wale score in foundation.
So as such, when I started my studies, I did not have कि हाँ ranker है तो ऐसे पढ़ना है. What I was focused that this is what I can study. इतना vast course है कि पढ़ते जाओ बस, कोई लिमिट ही नहीं. अगर ऐसे मटेरियल कर लिया तो go through the past year paper. अगर न्यू कोर्स वाला past year paper कर लिया, if you still have time, go to the पहले वाला जो कोर्स था, the IPCC कोर्स के past papers, MTP, RTP. So everyone knows कि हाँ क्वेश्चन यही से है, बट मेनी पीपल डोंट डू दी ICI मटेरियल या पास्ट ईयर पेपर्स में टाइम नहीं देते. सो ये वाला जो एक डिफरेंशियल फैक्टर आता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रैंकर्स अलोंग विथ मी, ऑल ऑफ देम हैव सॉल्व्ड पास्ट ईयर पेपर्स, हैव अपीयर्ड फॉर मॉक टेस्ट. सो आई थिंक दिस इज द डिफरेंस. Thank you, Nishta. We'll have open mic now. So if the questions I've seen a lot of questions. Those questions you have, you can ask now. Raise your hands if you want a question, if you want an answer. Hi, Mr. My question is to you. How should we plan our 1.5 days studies? So what my strategy was that during the last 2 months, that is March and April, I decided that my revision strategy would be to complete the first revision would be to complete the entire syllabus in 4 days. Because इतना टाइम होता है, if we don't give a concise days कि हमको इतना देर में कंप्लीट करना है, तो वो exaggerate, मतलब वो बढ़ते जाएगा कि ठीक है 6 days 7 days लग गया, but we just have 1.5 day. So first revision I completed in 4 days per subject, तो एक महीने में मेरा first revision हो गया. Second revision I decided to complete the entire revision in 2.5 days. So it was a planned revision strategy that I have to narrow down whatever the syllabus is, because at the end of the day I just have 1.5 days to complete the entire syllabus. So एक strategically thinking कि पहले 4 days दिया and I just narrowed it down कि अब second division में मेरे को किस पे ज़्यादा focus करना है, किस पे ज़्यादा time देना है. Reduce the number of questions for practical subject जिसमें सारे adjustment cover हो गए. No need to solve the entire question, just see the particular adjustment जिसमें problem हो रहा है. For theory subject, just make your own summary notes. So at the end, मतलब जब 1.5 days आती, you already have concise your entire syllabus जिसमें आप 4 days में पहले revision की, फिर 2.5 days में की, then 1.5 days में ऐसे हो जाते हैं. And then also 1.5 day में कैसे revision करना है, that is you know कि easy chapter है तो exam के day करते हैं कि थक के आए हैं, या फिर morning के लिए छोड़ देते हैं, तो main 1 day जो होते हैं उसमें कौन से chapters पे ज़्यादा focus करना है. So ये सब समझ में आता है जब because it is subjective. What I thought was difficult, you might not think that is difficult. So वो सब जब आप ये revision अपना खुद करते हो 4 days 2.5 days and then you start concising it, you will realize कि हाँ 1.5 day में where I have to focus much. Thank you. So okay, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सपोज जैसे एक ICI का मटेरियल है, उसको बोलते हैं कि उसी को पढ़ लो तो हो जाएगा, फिर भी लोग ट्यूशन्स प्रेफर करते हैं, राइट? तो जो ट्यूशन के मटेरियल में रहता है और जो हम लोग लिखते हैं तो कभी कभार अलग हो सकता है, तो हम लोग को क्या प्रेफर करना चाहिए? क्योंकि ICI का जो मटेरियल है वो पूरा ब्लैक एंड वाइट रहता है, पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, तो क्या प्रेफर करती हो आप? Even I took tuition for all the subjects and I also referred the tuition material, but at the end of the day I knew कि ICI material के बाहर तो कहीं पूछेगा ही नहीं, तो that is the Gita, that is everything that I had to study. So what I did that during, like I said, self study and classes were going parallelly. So जैसे ही क्लासेस हो जाती थी, जैसे आज अगर फॉर एग्जाम्पल सुबह लॉ का क्लास था, सो इमीडिएटली शाम को मैं ICI मटेरियल देख लेती थी लॉ का कि अच्छा ठीक है ये कॉन्सेप्ट इसमें कवर्ड है, ये बस मार्क कर लेते, बिकॉज ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, बट कुछ चीज़ें छूट जाती है, लाइक इलस्ट्रेशंस नहीं होते शायद से ट्यूशन मटेरियल में, या कोई एग्जाम्पल्स छूट जाते हैं या कोई कॉन्सेप्ट, तो साथ साथ डोंट पाइल इट अप फॉर द एंड कि फिर बोरिंग लगेगा. व्हेन यू डू द क्लासेस, जो कॉन्सेप्ट कवर हो गया वही शाम को जाके ICI मटेरियल से एक बार देख लो, ऑलमोस्ट इट विल बी सिमिलर, बट अगर कुछ अलग आते हैं तो उसको बस एक वो पॉइंट हाईलाइट करके रख लो या कहीं नोट करके रख लो कि हाँ अगर ये चैप्टर ट्यूशन मटेरियल से पढ़ रहे हैं तो फिर ICI मटेरियल को जस्ट यू हैव टू सी दैट कॉन्सेप्ट और दैट पार्ट. Okay, so do you believe in ABC analysis? No, I personally don't believe in ABC analysis. कोई गारंटी नहीं है फर्स्टली. सेकंड, इतना टाइम वेस्ट होता है उसमें. इट्स बेटर यू जस्ट सॉल्व द पास्ट ईयर पेपर, जस्ट गो थ्रू इट, सैम्पल स्टडी अगेन. आई डोंट बिलीव इन एनी ऑफ दिस बिकॉज द पेपर पैटर्न इज चेंजिंग. सो जो आ गया क्वेश्चन वो वापस अब मोस्टली नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा दैट वी विल नॉट स्टडी इफ वी गो थ्रू द ABC analysis. So I don't believe in ABC analysis. Okay, so और कोई जैसे क्वेश्चन पूछना है, प्लीज रेज योर हैंड. While doing classes or during the revision, which subject combination should be preferred? Like generally we prefer 2 subjects in a day. Which subject combination should be selected? So
like I shared, I did not select two subjects. I just focused on one subject and gave it the entire 4 days. So, but when you yes, इस revision से पहले firstly you have to give 1.5 months to just focus on the concept of the particular subject जिसमें difficulty हो रही है, because the entire subject is not difficult, just particular things are difficult. So the first after the classes are over, 1 month या half month जितना भी, first just focus on the concept जिसमें difficulty हो रहा है, जिसमें ज़्यादा effort चाहिए, जिसमें ज़्यादा time लग रहा है. As such कोई combination नहीं है, but if in my opinion अगर दो subject अगर करना है, so I think एक practical और एक theory subject लेके चलना चाहिए. Okay, so now that you have cleared intermediate with such flying colors, so what are your plans for the next 3 years? I am not planning to pursue any other course. I just want to focus on this course only, CA course. Started my articleship in EY Calcutta. So for like I've already started with my finals tuitions. It's on weekend basis, but now just 1 year I just want to give it into my articleship and want to learn. What this corporate life is all about, because right now I just have the theoretical knowledge. So 1 year I want to focus and learn the new things, and then maybe after the first year I'll try to just lower that down and focus on my studies as well. Personality development, joining some clubs, that going back to my hobbies. I was very much all over the place, so maybe I'll participate in those activities. Anybody here who want to ask the question? We feel very distracted and sleepy while we study theory subjects. So what should we do? Like how to focus on the theory subjects? There is a mental stigma that it is a theory subject. अभी लगेगा ऐसा boring ये वो, तो firstly you have to tackle that कि ठीक है अब theory subject है भी तो है, पढ़ना तो है ही उसको. If you don't study now, अभी सो जाओगे तो बाद में पढ़ना होगा. Although पढ़ने के time if you feel sleepy, if you are not able to concentrate, either take a nap for 15-30 minutes or focus on some other subject which in which you are interested in, and then get back to the theory subject, because मतलब करना तो है ही at the end of the day, even if you find it boring. To make it interesting, you can make your own notes, you can use colorful pens, ये सब कर सकते हैं, but the context remains same, मतलब outlook change करने से. Also, certain revision videos of your teachers or of some other teachers, उनके देखो, the one who teaches with थोड़ा मजाक मस्ती करके या वो, but at the end of the day पढ़ना तो खुद को ही है, तो just overcome this and just have it in your mind that अभी नहीं पढ़ूंगी, you will have to या तो कल पढ़ूंगी या तो फिर 6 months बाद वापस अटेंड करेंगे तो वापस पढ़ना पड़ेगा, because ICSE is not going to change the syllabus for you. So that's it. Okay, sure. As you know, we have only 2 months left for November 21. So what is our strategy? What should be? I assume to August end the classes will be over, so you have September and October. So focus on the concepts which you find difficult and then start appearing for mock test as soon as possible. Try to keep the concepts clear, but now just focus on learning the keywords. Now this is the time to start learning, not just reading and going through the classes. And just एक chapter करके just immediately go through the past year paper, MTP, RTP, so you know that if you are able to answer the questions, because it is one thing that we study and we think we know everything, but when we see the questions, because we don't expect direct questions in especially in subjects like audit, so you have to understand that what type of questions they are giving and what answers they are expecting. So this you will learn by appearing for mock test firstly, and also going through the past year papers and just understanding if you are able to understand, if you are able to identify the provision or the context that they are asking, and you are able to write it down. Okay, so next we will be asking the Tamanna. आपने मॉक टेस्ट पेपर का बोला ना, तो लाइक हम लोग को लाइक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर देना चाहिए कि चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना चाहिए? जब क्लासेस होती है तब आई थिंक ट्यूशन से मॉक टेस्ट प्रोवाइड होती है, दे टेक द मॉक टेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर सिलेबस या जहाँ पे भी क्लासेस हो रही है. So but now if you are appearing for November exams, you have only 2 months, so now I think कि full paper देना चाहिए, because the thing you learn about from mock test is pretty much what I said earlier, that कैसे पेपर को अप्रोच करना है, how to use the 15 minutes, what is your core strength, the patience level you need, the calmness you need.
So for that, I think you have to sit for the entire 3 hours 15 minutes and appear for the entire syllabus if you are giving the exams in November. But if your classes are going on, then I think and make an attempt here, then I think कि chapter wise mock test भी दे सकते if your tuition teachers provide, या फिर खुद ही there is nothing as such mock test, just go through the past year paper and just select the questions and just see कि उस chapter या उस concept से related you know everything. थ्योरी सब्जेक्ट्स में मोस्टली हाउ टू लर्न कीवर्ड्स और कितने टाइम उसको डिवोटेड करना चाहिए थ्योरी सब्जेक्ट्स. How to learn keywords is firstly पूरा you have to understand everything and you have to identify कि हाँ this word, because the entire sentence is not important, the particular thing is important. For example, if a limit is given, for example law या audit में कुछ days दिए हुए हैं या कुछ words दिए हुए हैं, so you have to focus on that. What I did was I said material में, because the entire page was not important, just those things were important, I used to write it down on the margin side. वो होता है, and how much time to devote to it, again it is subjective. Theory for me was not as strong as my practical subjects were, so I had to give the extra effort to theory subjects. So, okay, Anjali. In your opinion, how should we present the answers in exam? Like 3 hours में हमें पूरा पेपर खत्म करना होता है and answers कई सारे बहुत लेंदी होते हैं, but छोटा लिखेंगे तो obviously marks तो नहीं मिलेंगे properly. तो in your opinion हमें उसे कैसे present करना चाहिए? Add on sequence मतलब क्या maintain करना चाहिए? Sequence. Sequence obviously first, because the first few questions will set the impression to the person who is checking the paper. So first 2-3 questions would be the one जिसमें you are 100% confident, या जिसमें you know that हाँ देखा हुआ question है, I know the answer. So this and the difficult question या the one जो कभी देखा ही नहीं है, that either you can take it out on option, या फिर अगर अपेयर करना ही पड़ रहा है तो कीप इट फॉर द लास्ट, कि बाद में अगर इफ यू हैव टाइम तो दिमाग लगा के करेंगे, या फिर जितना आ रहा है उतना करेंगे. आई लीव दैट एडजस्टमेंट जो हम लोग को आता नहीं है. हाउ टू प्रेजेंट द पेपर्स, जैसे सजेस्टेड आंसर्स में होते हैं दैट फॉर एग्जांपल फॉर लॉ यू हैव अ पर्टिकुलर पैटर्न बिकॉज केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. सो हाउ टू give the solution, कैसे present करना है उसको. For practical subjects, not speaking about tax but accounts cost as such कोई presentation method होता नहीं है. If the the sum is right and you have the proper working notes, चाहे आगे चाहे पीछे they give marks, ऐसा कुछ वो नहीं है कि there is a particular pattern वैसा करना है. But for law there is you have to write the provision first, then you have to explain the case, how you relate it. And for audit also mostly इतना precise, इतना specific नहीं होता law के जितना, but yes उसमें भी you have to थोड़ा अपने answers को mold करने. You can't write the code bare provision in the answers. Santur. Hello. So my question is, how can we get ourselves motivated and positive? Because as the exam starts and starts knocking our door, then we get panic now. So how we should manage that? Motivation, obviously there are various external sources जिससे motivation आ सकता है. You can refer to some YouTube videos, when people talk about their stories, success story, how much they had to work out. But I personally I feel कि that is temporary motivation. 10-15 दिन बाद फिर एक नया video चाहिए होता है. So leaving that, what my source of motivation was that I had the past experience जिसमें I regretted on the day of my results because I was not able to give my 100%. So that regret उससे बहुत I used to feel very scared of that regret, that if I don't study today on the day of results, even if I pass, even if I get a rank, I regret on that day that I did not give my 100%. I could have done better. So that scare of regret or वो डर जो regret का होता है, that is the worst form of I feel fear. So that was my source of motivation, that it is just 6 months, it is just two months now. These are the 2 months I have. उसके बाद I will not have to study this again if I give my 100% in these 2 months. So that was my source of motivation. Also motivation comes from various people, so it might be your parents or your siblings या कोई friends.
So वहाँ से भी motivation आता है. Also your dream, your why you are pursuing this course, एक reason that you started with this course. So whenever you feel demotivated, negative, I think just remind yourself that okay, there was a reason I am doing, and if I don't study now or if I don't concentrate now, you are just going far away from that. So that. Okay, so could you come here, please? So, who is your motivation? Motivation, like I said, the fear of regret was my motivation. But talking about person, I lost my dad when I was 11. When I was 11 years, so he was also pursuing chartered accountancy, but then he could not complete it. So I was very young back then. So many people, whenever I used to meet his friends, and even now, they all used to tell me that your dad was very intelligent and he was also pursuing chartered accountancy and sort of thing. So at the back of the mind, I had somewhere that okay, I have to pursue this course, but I was not very confident. Like I remember seeing my report card a few days back of class 7 when I wrote that my aim is to become a chartered accountant. I did not even know what was chartered accountant back then, but I wrote that. So he then cut to class 2 after 12. I started with chartered accountancy, and then I started reading it and enjoying the subjects. So I remember while everyone जब सब बोलते हैं ऐसे कि your dad was doing that. So that is a very बहुत एक motivating factor that okay, my dad could not complete it, I'll do that for him. And then not just for him, but now that I have started course, I'm not just like कि हाँ पापा का सपना पूरा करूँ. Even I am interested in this particular course. So that, and obviously I have a single mother, so even she has been a huge support system for me, and believing in me and letting me choose my path, whatever I want to do, sending me outside for studies. So these two people were my major source of motivation. Also to my extended family also, because they believed in me, because I stayed in my home is in Guwahati, so I stayed in Calcutta. So they were there for me. My Chachi was like my mother. So even they are my source of motivation, that they are doing so much for me. Not they don't do that much for their own children, but they are doing that for me. So even that was a source of motivation. And yeah. Okay, so anybody here who want to ask the question? What were the top challenges you faced while preparing for the intermediate examination? And how would you advise us to cope the same if we faced any? Firstly, the first challenge that I faced was that during the classes phase, since I was always at my home and none of my friends were pursuing CA, so they were all out enjoying and I was at home. So there were moments when I used to feel ki, what am I doing in my life? Ek hi life hai, let me also go out and enjoy. But then again, the motivation came back and I had to study. So first major challenge was that. Second, because of the reason that I deferred my term, the 2 months, December and January, were extremely challenging because I was not able to concentrate also, I procrastinated also, and then I regretted also that why did I defer, I could have, cleared the exams. Like on the day of the exam, Shamko, I used to see the paper and just, write whatever I knew, and then I was like, हाँ pass, I could have easily cleared the paper, I just wasted my 6 months. So, वो जो regret था that I wasted my 6 months, that was also a bit demotivating for me. So, these were the major 2 challenges that I faced. And the third one was that कि पढ़ाई नहीं हो रहा, I'm not able to retain anything, because when I started with the syllabus, because after coming from foundation, when I started with subjects like direct tax, I thought that ठीक है salary हो गया, now PGBP, I forgot salary, everything, and as a these are the things that all of us go through. So these were the 3 challenges that I faced, but again I knew that the syllabus is not going to change for me. Everyone is doing it, everyone is facing the same problem. So there obviously there is a way out, because many people are there who are pursuing the same course, who have cleared it. So I tried to give my 100% back then. Thoda feel positive whenever I used to be negative. Talk to my friends who used to make me feel positive, या फिर कुछ बोलते थे कि थोड़ा chill हो जाता था, and then either I used to concentrate on the subjects like accountancy या फिर कोई practical subject that is my strength for some time कि वापस से confidence आ जाए. So these were the things that I used to do whenever I faced any challenge. First of all, congratulations on the rank. And my question is, when and at what age did you develop that sense of ownership, that sense of seriousness towards your life, that a ranker needs that
that level of you? And what would be your advice for those who haven't already? This seriousness, particularly talking about CA course, I developed after my foundation. During my foundation also I was a bit serious, but not as, because foundation is a comparatively easier than these two, inter and finals. Specifically inter, since I just have given that, I just gave that exam. So foundation was very easy, so I was not that much serious about it. But after the foundation exams, when I started with the classes, I realized that ऐसे नहीं चलेगा. I have to change my approach. I have to give more hours of study. It's not just like class 10 and 12 कि ऐसे ही निकल जाएगा. So that was the time when I became very serious about this profession. And academically, I have always been serious. Not वैसा नहीं कि पढ़ाई को backseat देने वाला. But for this profession, after foundation exams, I became very serious that these are the 9-10 months that I have, and abhi I'll give my 110%. उसके बाद I'll chill and relax with my friends. So for those who have not become serious yet, this is high time that you become serious, because after 2 months you have the inter exams, or after a few years you have your final exams, and you have already cleared 2 levels of these exams. So what if you don't become serious now, then all ये सारा मेहनत waste हो जाएगा. So ये period पूरा waste हो जाएगा if you don't become serious now. So serious बन जाओ. ओके सो जैसे तुमने कहा कि रोज तुम घर आती थी और देखती थी कि हाँ तुम पास तो हो जा रही, इतना काउंट होता था, राइट? तो वैसे ही और सब भी करते हैं, बट जब हम लोग को पता चल, जैसे हम लोग को लगता है कि हम लोग पास हो जाएंगे, जब रिजल्ट देखते हैं तो वहाँ पे लाइक कोई सब्जेक्ट में लाइक बिलो 40 है, या एग्रीगेट में कोई नहीं कर पा रहा है, तो उसमें तुम्हारा क्या टेक है? फर्स्टली मे एग्जाम्स की पेपर्स में मैं नहीं देखती थी कि मैं पास हो जाऊंगी. आई टोल्ड दैट फॉर दिसंबर पेपर कि व्हेनेवर द पेपर यूज्ड टू, मतलब मॉर्निंग में एग्जाम, दोपहर में एग्जाम्स होते थे तो शाम तक पेपर आ जाता था मेरे पास, एंड देन आई यूज्ड टू सी. For May exams, there was never a paper that I opened outside the exam hall. मैं वहीं छोड़ के आती थी सारे पेपर, because I knew that next paper गंदा हो अच्छा हो, I just have 1.5 day for the next paper. So वो पेपर मैं सोचती नहीं थी. हाँ, 1-2 पेपर ऐसा था जिसमें लगा था कि स्पेसिफिकली ऑडिट की शायद अच्छा नहीं हुआ या उतना अच्छा नहीं हुआ कि अच्छा रैंक आ जाए. सो उस टाइम थोड़ा मेरे को ऐसे फॉर हाफ एन आवर 1 hour थोड़ा ख़राब लगता था. बट उसके बाद जब मैं घर जाती थी, आई न्यू कि अगर ठीक है ऑडिट में 5-10 मार्क्स कम आ रहे हैं, देन आई हैव टू कवर इट अप इन EISSM. So that factor was again motivated me कि ठीक है 2 पेपर और बचे तो I have to give my 100%, and वो जो 5-10 मार्क्स जो ऑडिट में रह गया because the paper did not go good, वो मेरे को EISSM में कवर करना है. Okay. So anybody here who want to ask the question? What was your strategy to approach the paper? Like कुछ questions ऐसे होते हैं कि वो easy होते हैं, हम लोगों को लगता है देखने में easy है, पर वो बनाने बैठते तो 3 hours का half hours उसी में दे देते हैं, या ऐसा होता है कि कुछ पेपर्स ऐसे बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं तो एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट कर देते हैं, उसकी वजह से बाकी जो क्वेश्चन आपको आता है वो भी छूट जाता है. उसको आप क्या? फर्स्टली जो 15 minutes का टाइम होता था उसमें व्हाट आई यूज्ड टू डू दैट 5 minutes आई यूज्ड टू जस्ट सी द पेपर एंड आई यूज्ड टू डिसाइड कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को छोड़ना है. द रिमेनिंग 10 minutes 5-10 minutes जो भी बचते थे, व्हाट आई डिड दैट द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव टू अप्रोच इन आई हैव टू राइट इन द आंसर शीट, उसका रफ वर्क मैं सारा क्वेश्चन पेपर में कर देती थी. तो मेरे को पता था कि हाँ अच्छा ठीक है ये मेरे से बन रहे, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं जो मेरे को नहीं आता है. जो क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट कुछ आ जाता था और जो ऑब्वियसली आया भी था एग्जाम में, वो मैं क्या करती थी, बिकॉज द एंटायर क्वेश्चन वाज नॉट डिफिकल्ट, ओनली वन एडजस्टमेंट या वन पॉइंट ऑफ दैट वाज डिफिकल्ट. तो आई डिड नॉट पे मच अटेंशन टू इट बिकॉज आई न्यू सिर्फ 3 hours, इफ आई जस्ट गिव 1 hour टू दिस क्वेश्चन बाकी का पेपर रह जाएगा, जिसमें मेरे को इट्स बेटर टू अपीयर फॉर 80-90 मार्क्स पूरा करके, रादर देन एक ही क्वेश्चन में बैठ के उसी को सॉल्व करना है. द चांसेस कि वो करेक्ट हो, बिकॉज अंडर दैट मच प्रेशर कोई नया ही कुछ आ जाए जो कभी नहीं देखा हो, तो देयर वेरी लो प्रोबेबिलिटी कि वो सही बने, और बनने से भी इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो फर्स्टली जो भी क्वेश्चन मैं फर्स्ट आंसर शीट में लिखती थी, आई यूज्ड टू डू द रफ वर्क इन द क्वेश्चन पेपर ओनली, सो आई न्यू कि हाँ ये मेरे को आ रहा है, देयर इज नॉट अ सिंगल पॉइंट दैट आई डोंट नो. एंड जो क्वेश्चन में ऐसा कुछ था कि आई हैव टू अपीयर फॉर द क्वेश्चन, आई हैव टू अपीयर फॉर द क्वेश्चन एंड आई कांट टेक इट आउट ऑप्शन में कि निकाल दो, अगर वो करना भी है तो आई डिड नॉट पे मच अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर एडजस्टमेंट जो डिफिकल्ट है, बिकॉज आई न्यू कि अगर डिफिकल्ट एडजस्टमेंट का 1 mark है तो इजी एडजस्टमेंट का भी 1 mark है. सो लेट वो 1-2 marks छोड़ो, जितना आ रहा है उतना करो, ये 3 hours है.
So that was my approach, and this came from the fact that I appeared for many mock tests. So first two mock tests mere that were not that good because even I remember law wale mock test mein 15 minutes into the paper I called my teacher and I was like, I don't want to give the paper, I know nothing. And he was like, just imagine this is the ICAI paper and you have to sit for 3 hours. So what will you do? And then I sat for 3 hours even though I did not score good, but yeah, I knew कि हाँ ठीक है अगर ऐसा कोई पेपर आया, that was the learning phase कि हाँ पहला mock test अगर खराब गया तो second mock test अच्छा जाएगा. And if you don't appear for that, the ICAI paper will become your first mock test and you have to sit again 6 months. And this is a fact because knowing everything in those 3 hours are completely different. So practice जो होता है mock test का वो बहुत ज़्यादा important है. That will teach you कि हाँ अगर difficult paper आ गया तो कैसे करना है. And कुछ question अगर easy लग रहा है उसमें फिर भी एक difficult point है तो उसमें क्या करना है. Okay, so जैसे हम लोग का कुछ पेपर्स MCQ होता है और 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल थ्योरी होता है, राइट? सो तुम्हारे हिसाब से क्या अटेम्प्ट पहले करना चाहिए, मतलब थ्योरी करना चाहिए MCQ? और MCQ में भी ऐसा बहुत होता है कि लाइक 30 का 30 किसी को नहीं आएगा, राइट? आता भी है तो इसीलिए तो फिर अगर सपोज नहीं आ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए देन? और कुछ में तो सम्स भी रहते हैं जैसे टैक्स के पेपर में रहता था. MCQ, my approach was that I will not appear for the MCQs first. I will just see how my paper was going. So I appeared for 40 marks पहले 1 hour में. अगर वो मेरा अच्छा गया तो मैं 20 marks और theory appear करती थी 60 marks. बट अगर मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं 40 मार्क्स का जो या तो वो अच्छा नहीं गया या फिर वो ज़्यादा टाइम ले गया तो जस्ट कवर द टाइम गैप 15-20 मिनट्स में आई जस्ट यूज्ड टू गो थ्रू द MCQ. वरना 3 क्वेश्चन के बाद मैं MCQ करती थी आफ्टर कवरिंग 60 मार्क्स दैट इज. I will suggest कि MCQ don't keep it for the last क्योंकि लास्ट का जो स्ट्रेस होता है जो प्रेशर होता है उसमें easy MCQs भी डिफिकल्ट हो जाएंगे. और don't keep it for the first also कि थोड़ा पेपर स्लो हो जाएगा कि MCQ में थोड़ा रिलैक्स करके कर दे. Keep it somewhere in the middle. Again this was my approach. A bit subjective. जब आप मॉक टेस्ट दोगे खुद ही समझ में आ जाएगा कि what suits you best या what works for you the best. Again anybody How many RTP, MTP and previous year question we should appear for or we should solve? देखो सॉल्व करने जितना टाइम नहीं रहता बिकॉज इफ यू ऑलरेडी अपियरिंग फॉर 2 मॉक टेस्ट सो पूरा पेपर सॉल्व नहीं होगा. बट स्टार्ट विद द रीसेंट टर्म्स लाइक अभी नवंबर के एग्जाम है तो May 22 से स्टार्ट करो. देन इफ यू हैव टाइम गो बैक November 21 December 21 के पेपर. सो बस चलते रहो. इफ यू हैव टाइम तो बस पीछे चलते रहो बिकॉज इट विल नेवर हर्ट यू. यू नेवर नो कि कौन सा क्वेश्चन आ जाए बिकॉज I know on the exam day 2 पेपर में मेरे 10 to 15 मार्क्स से पेपर एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ गए थे एंड आई कुड नॉट बी हैप्पी फॉर द फैक्ट दैट मॉर्निंग में बैठ के मैं 2012-13 का पेपर देख ली थी. सो दैट इज द यू नेवर नो देखा हुआ क्वेश्चन आ जाएगा एंड वहीं से क्वेश्चंस आते हैं. एज इन माय एक्सपीरियंस आई फाउंड अ लॉट ऑफ कॉमन क्वेश्चंस. सो स्टार्ट विद द रीसेंट टर्म्स एंड देन इफ यू हैव टाइम पीछे जाते रहो. Don't start solving all the papers because there are all the questions because there are repetitive questions. Solve different types of questions that you cover all the types rather than all the questions. किसी को कुछ पूछना है? So we got to know that you will also engage in many extracurricular activities such as yoga, Bharatanatyam. So how did you pursue it along with CA? This yoga Bharatanatyam was not during the intermediate journey. It was before that. So for my hobbies, I did not used to get much time to, particularly towards the end. But I made it a point that during the breaks, I have to do something that will calm my mind or एक बार पढ़ाई से निकल जाओ कि I will थोड़ा mind fresh हो जाए. So either I used to listen to music or I used to go for a walk. या फिर मैं किसी फ्रेंड से बात कर लेती थी फैमिली के साथ 10-15 मिनट्स बैठ जाओ. बट आई रिस्ट्रेन माई सेल्फ फ्रॉम यूजिंग फोन या फिर सोशल मीडिया में तो मैं थी नहीं. बट ऑल्सो कुछ भी फोन न्यूज मैं एकदम भी नहीं देखती थी बिकॉज आई न्यू इवन इफ आई गिव 15 मिनट्स टू दैट इफ आई सी समथिंग जो दैट इंटरेस्ट मी या दैट डिस्टर्ब्स मी ऑल्सो मेरे 1 or 2 hour इवन इफ आई सिट इन फ्रंट ऑफ द बुक्स आई विल बी डिस्ट्रैक्टेड थ्रू आउट. So not that but hobbies as such कुछ continue नहीं हुआ intermediate journey में. But few things that gave me joy या that relaxed my mind I used to do that during the breaks 10-15 minutes break. Okay, thank you. So Neeraj sir would like to talk to you. Okay, so good evening to all of you. बाकी लोग के लिए गुड इवनिंग नहीं है? हाँ? नहीं बोलेंगे, नाराज हैं? हाँ?
तो क्या समझ में आया? संतूर बजाओ संतूर। क्या क्रक्स है आधे घंटे के डिस्कशन का? सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई सीरियस नहीं है अब तक तो उसको सबसे पहले सीरियस हो जाना चाहिए। सीरियस फॉर व्हाट? सीरियस फॉर स्टडीज एंड सीरियस फॉर द रिजल्ट्स कि एग्जाम के बाद जो रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलता है, हम लोग मतलब शायद सभी करते हैं कि फेल करते तो थोड़ा ब्लेम करते हैं आईसीआई को कि मार्क्स नहीं दिया, ये नहीं किया, पर हम लोग अपने ऊपर फोकस नहीं करते कि हम लोग का क्या लैक रह जा रहा है। तो अभी इन्होंने भी कहा कि लाइक हम लोग को रिग्रेट ना हो कि हम लोग अपना 6 महीना मतलब देकर पढ़ता तो सभी है, लेकिन कोई क्या करते हैं कि पूरा ही डिवोट कर देता है अपना टाइम और कोई कुछ चीज़ों में रह जाता है। तो उस चीज़ से थोड़ा डाइवर्ट होकर अपना सारा टाइम स्टडीज़ को देना है और एमटीपी आरटीपी ये सब सॉल्व करना है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि हम लोग के अंदर पेशेंस नहीं रहता कि हम लोग 3 घंटा बैठे 3 घंटा बैठ कर एकदम प्रॉपर सॉल्व करें क्वेश्चन आंसर्स को। तो ये सब पे हम लोग को फोकस करना। फ्री में बहुत चीज मिली है। प्रिंस भाई बोलिए। फोकस है मॉक टेस्ट में अपीयर करने के लिए, क्योंकि हमारा रिटन प्रैक्टिस नहीं रहता है और फिर एग्जाम में ही मतलब वो पहला मॉक टेस्ट बन जाता है जैसे बोला। या तो आज दे दीजिए, नहीं तो नवंबर में देना पड़ेगा। हाँ वेरी गुड। इधर और राल्टे स्पेसिफिक टेकअवे? It's really important to give the mock exam and the fact that we need to remind ourselves that what we really want to pursue this course. इधर से सलिया। फोकस रहना है और सीरियसनेस दिखाना है टुवर्ड्स, क्योंकि बाद में ये नहीं रिपीट करना है कि जो अभी किए वो लोग को एग्जाम के पेपर्स में रिजल्ट में एक्चुअली दिखेगा, बाद में वो रिग्रेट रह ही जाएगा और टाइम वेस्ट खुद का ही होगा। Okay, so last week we had session. Last week ही था ना नंदिनी के साथ, last to last. So Nandini was with us last to last and today Nishta is there. Common point कोई दोनों के deliberation में? हाँ? Mock test. Okay. और ICAI MAT. ठीक है, very good. और फोकस, ठीक बात है, फोकस चाहिए किसके ऊपर? पढ़ाई के ऊपर। नहीं बताओ, अब कोई बोलेगा मोबाइल के ऊपर, कोई बोलेगा इंस्टाग्राम के ऊपर। ओके, तो पढ़ाई के ऊपर फोकस चाहिए, ठीक है। और एल्स निष्ठा भी चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। वेरी गुड। क्या चीज के लिए? फेल होने के लिए? अच्छा, पास, ठीक है, पास होने के लिए। और मोटिवेट योरसेल्फ, ठीक है। हाँ, प्लानिंग, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन बोथ। खाली प्लानिंग में नहीं चलेगा, रूटीन हर दिन बना रहे हैं कि बस आज तो मतलब बस किताब धूल में चढ़ जाएगा। हाँ, प्रोकास्टिनेट नहीं करना। हाँ बोलो, तुम्हारा क्वेश्चन। जैसे कि मैंने देखा है कि बहुत जन एक दिन पहले ही अपना नेक्स्ट डे का रूटीन बना लेते थे, तो क्या आप बनाते थे? नहीं, कुछ एज सच प्रॉपर प्लान नहीं करती थी कि आज नेक्स्ट डे मेरे को कुछ करना है। जो सुबह, हाँ एक वो था कि हाँ ठीक है मॉर्निंग में थोड़े प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देख लेना, बट कौन सा देखना, ऐसे प्रॉपर ऐसे रूटीन मैंने कभी बनाया नहीं। जो उस टाइम मेरा मन किया या जो मेरे को पता था कि हाँ इसमें मेरे को ज़्यादा फोकस करना है या इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी हो रहा है, ये पार्ट मेरा क्लियर नहीं है, मैं वही करती थी जो एट द मोमेंट मेरे को फील होता था। ओके, सो मैसेज इज वेरी क्लियर। और अगर अभी संतूर ने जो बोला सर सीरियस होना है, किसी ने बोला फोकस करना है, तो इफ यू रिमेम्बर माय सेशन एंड इन फैक्ट मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम माय ओटी बैच ओनली, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप केवल सीए इंटर का 400 क्यों सोचते हैं? तो आपको क्या मोटिवेट करेगा?
आपने कोई भी ऐसे बिल्डिंग का आर्किटेक्ट देखा है जो बोलता है पहले बेसमेंट खोद देते हैं फिर सोचते हैं फर्स्ट फ्लोर कैसा बनाएंगे, फिर वो सोचता है चलो अब सेकंड फ्लोर क्या करेंगे, फिर सोचता है वो अब थर्ड फ्लोर क्या बनाएंगे? नहीं होता है। आपका आर्किटेक्ट, योर प्लानिंग, योर विजन, योर मिशन, अगर आप ऊपर से नीचे नहीं आ रहे हैं, अगर आप उस पूरी चीजों को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो पहला तो डिफॉल्ट हम वही करते हैं। क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं उस लेवल को उस चीज तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि क्या मैं 400 मार्क्स इंटर में लाके सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, क्या मैं केवल 3 साल ट्रेनिंग करके सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, क्या मैं सीए फाइनल करके सेटिस्फाइड हो जाऊंगा? नहीं, मेरा उसके आगे का गोल है। हम उस आगे के गोल को पहले फिक्स करके जब नीचे उतरना चालू करेंगे, अच्छा चाहिए वो, अब उसके लिए मुझे ये चाहिए, उसके लिए ये चाहिए, उसके लिए ये चाहिए, उसके लिए ये चाहिए। अभी इसने मुझे बोला कि सर आई हैव स्टार्टेड माय ट्रेनिंग इन ऑडिट ईवाई एंड ऑल, so then immediately I started discussion with her that at the end of the day when you become CA, where you want to join, where you want to work, which area you want to choose, क्योंकि आज इसने वो ट्रैवल नहीं किया है बट मैं वहां से आ रहा हूं। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आप सीरियस केवल 400 के लिए हो रहे हैं या किसी बड़े गोल के लिए हो रहे हैं। और जब आप बड़े गोल के ऊपर अपने आप को जीरो डाउन करते हैं, बड़े टारगेट के ऊपर आप अपने आप को फोकस करते हैं, तो ये सब चीजें, अभी वो विधि आके क्या मुझे नींद सा लगता है, अरे आदमी कितना सो लेगा, अरे तुम सो एक दिन 24 घंटा दिखाओ, सो के मन भर के सो, कितना सो लेगा? प्रॉब्लम नींद नहीं है, प्रॉब्लम प्रोकास्टिनेशन नहीं है। प्रॉब्लम सबसे पहला है कि हमारा जो विजन, जो हम चाह रहे हैं वो कितना क्लियर है। वो कहीं ना कहीं हम बोल रहे हैं या सोच रहे हैं, लेकिन हम उसको कितना अपने में इम्बाइब करके हर दिन उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो अगर कॉमन पॉइंट्स, मैं नंदिनी का भी सुना, निष्ठा का भी सुन रहा हूं, तो जो सबसे फर्स्ट है कि पहले आप इस बात को मानिए, पहले जो एक जो सबसे बड़ा हमारा भ्रम है, क्या भ्रम है? कि हमारे पास क्या चीज बहुत है। हम बोले तो भगवान कूट कूट के दिए, अरे बाप रे, फ्री एकदम, जब बोलिए तब बोले कैसे वेस्ट करना, ट्रेनिंग और दे देंगे सर, फुल डे के क्लास कर देंगे, कैसे वेस्ट करना है टाइम, हाउ टू वेस्ट में, उनके लिए तो यूटिलाइजेशन दूसरे के लिए। तो ये जो सोच है, राकेश झुंझुनवाला किस एज में गए? 62, सब जानते हैं, सबको एकदम पता, जैसे उन्हीं का 2-4 हजार करोड़ रुपया वो छोड़ के गए, सबके पास हिसाब है। कितना का नेटवर्क था जिस दिन वो एक्सपायर किए? 5,000 करोड़। बाप रे बाप, तुम ऐसा मान लो कि बिल्डिंग ढह जाए, 5 लाख करोड़ 29,000 करोड़ का उनका नेटवर्क था जिस दिन वो एक्सपायर किया। मैं उनका वो एक ऑब्ट्यूरी का टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत बड़ा पोस्टर आया, मैं देख रहा था, तो मैं एक चीज देखा, बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ। वाइफ का नाम है, सन का नाम है, डॉटर का नाम है, नीचे में उनके भाई का नाम है, भाभी का नाम है, फिर उनके साले का सबका नाम है, पेरेंट्स का नाम, अरे पेरेंट्स भी है बच्चों के साथ उनके हस्बैंड और वाइफ का नाम है। तो मैं ये सोचने लगा, आज आदमी 29,000 करोड़ रुपया दे के अपने बच्चे का भी मैरिज देख के नहीं जा पाया। भले उसने 29,000 करोड़ रुपया, आज के दिन में अगर कोई बोले कि आज टुडे आई एम वर्किंग सो हार्ड, मैं इतना पैसा अर्न कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं बोलूं मैं किसके लिए कर रहा हूँ, फॉर होम, एट द एंड ऑफ द डे मैं इसको तो कल जाके बोला अच्छा तो आज बहुत तुम मेहनत की, लो 1 लाख रुपया, अरे ये तो गजब का आज मॉडरेटर का रोल अदा किया, लो 50,000 रुपया,
नहीं होगा ऐसा। किसके लिए वो वेल्थ? अल्टीमेटली उस फैमिली के लिए है कि आज जब हम अपने डॉटर का, सन का हम मैरिज करते हैं, उनको एक फैमिली में सेट करते हैं, तो अल्टीमेटली क्या है हमारा गोल? क्या है? गोल तो यही है। तो आज वो बंदा 30,000 करोड़ रुपए का नेटवर्थ रखने के बाद भी उस सुख को भोग नहीं। क्यों? आप बताइए कौन सा ट्रीटमेंट था इस पृथ्वी पर? अगर अंतरिक्ष में भी जाके करना होता तो वो कल बोले भैया पृथ्वी ग्रह पे भी इलाज खत्म, मंगल पे जाना है, चलो चलिए जाते। हम लोग सिंगापुर, अमेरिका, उसके आगे कहां जाएंगे? तो जो पॉइंट है कि आपको पहले इस बात को, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच ईच वन ऑफ अस हैज टू एक्सेप्ट, टाइम इज लिमिटेड। इस बात को हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड आप अपने माइंड को बताते रहिए कि मेरे पास टाइम। और जब आपको ये फील हो जाएगा ये टाइम मेरा लिमिटेड है, आप उसकी वैल्यू करने लग जाएंगे। आपको लगेगा कि अरे बाप रे बाप, क्या कल इसको भी पता लगेगा इसके पॉकेट में 10 लाख रुपया, क्या वैल्यू होगा इसका? और इसके बगल में भी जो बैठेगा वो क्या सोचेगा? अरे बाप रे, तो 10 लाख रुपया लेके बैठा हुआ। कल 50 लाख का गोल्डन चेन पहन के बैठ जाएगी, क्या होगा? ये भी 8 बार घूरेगी, गुंजन भी थोड़ा सा नजर पड़ जाए। क्यों? क्योंकि आपको वो आज दिख रहा है, वो आप फील कर रहे हैं, तो आप उसको वैल्यू दे रहे हैं। लेकिन टाइम जो भगवान ने सबको बराबर दिया, जहां उसने चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे वो कोई भी हो, उसने कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं किया। चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो रोड में रिक्शा चलाने वाला कोई व्यक्ति, उसको भी 24 दिया, उनको भी 24 दिया। वैल्यू मुझे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, और इसमें हमने बहुत लंबे एट लेंथ वी हैव डिस्कस्ड, आई थिंक आई हैव आल्सो कंडक्टेड वन सेशन ऑन टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग अगर इन दोनों की बात को अगर माने, तो आप ये समझिए कि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, और उस टाइम को अब किस गोल से कनेक्ट करना है। अब टाइम मिल गया, ये फिक्स हो गया कि मेरे पास टाइम है। अब क्वेश्चन, इस टाइम को किस गोल से कनेक्ट करना है? 8 बार फेल होने वाला गोल से कनेक्ट करना है, या रैंक वाले गोल से कनेक्ट करना है? ये हमने डिसाइड कर लीजिए। फिर नींद भी उसी टाइप से आएगा, भूख भी उसी टाइप से लगेगा, पिक्चर भी उतना ही देखने का इच्छा करेगा, फोन में गॉसिप भी उतना ही करने। अब इसने क्या कहा, आप सुनिए। ये मैं इसको जब मैंने बोला AC was in my OT, तो when she got rank and all, then I messaged her when she called me। तो मैंने इसको बोला तुमको एक दिन ऑफिस बुलाएंगे हम लोग का ट्रेनिंग में। ये मेरे बोले सर हम क्या उनको बताएंगे, बताइए। आज देखिए मैं 10 चीज सीख रहा हूँ, तो आज अगर आप सिंपल अगर चलते हैं, सिंपल कि आपको जिस गोल के साथ अपने टाइम को हुक डाल के कनेक्ट करना है, ये अगर हम डिसाइड कर ले, और ये हर कोई कर सकता है, इसमें थोड़ी इसके ऊपर है, उसके ऊपर है, उसके ऊपर है, सब मेथोडोलॉजी सेम, मेथोडोलॉजी इज कंप्लीटली फुल्ली क्लियर कि मेरे टाइम का कनेक्शन मेरे किस गोल से होना है। आई थिंक that is one of the most important thing which we need to rethink at this point of time। हम जहां भी आज खड़े हैं, और देखिए जो चला गया है उसके ऊपर अभी पोस्टमार्टम करने बैठेंगे तो आगे का और चला जाएगा। अभी बैठ के अब आप ये हिसाब किताब, अच्छा चलिए सर आज बैलेंस शीट आपको बना के देते हैं, अभी तक काम कितना बेस्ट किया, कोई दरकार नहीं है, वो तो PNL में डेबिट हो गया, कोई जरूरत नहीं। अब आज जहां, और ये सब के लिए, किसी के लिए, मेरे लिए भी है, मैं भी जहां खड़ा हूं, मैं भी आज अगर अब सोचूं, आज इसके सेशन को सुनने के बाद मैं भी मोटिवेट होके अपने आप को अगर मुझे रीप्लान करना है तो मैं बिल्कुल करूंगा। आप भी अपने आप को रीप्लान करना, तो रीप्लान करके अपने टाइम को अपने, और देखिए टाइम आपको मिल गया, गोल आपको डिसाइड करना है।
बहुत अच्छा कहा इसने, बहुत अच्छा। आप आज मॉक टेस्ट दे दीजिए, नहीं तो एग्जाम का पेपर मॉक टेस्ट तो आप दे ही रहे, मॉक टेस्ट तो दे ही रहे ना, जिनका 2-3 अटेम्प्ट हो गया तो क्या हो गया, वो तो टेस्टिंग हो रहा है। तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच वी नीड टू लर्न एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सेकेंड थिंग, जो अभी उसने कहा कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो बी वेरी क्लियर कि हाँ भाई ये सब तो प्रॉब्लम्स आएंगे ही, और देयर इज वन थिंग इज वेरी क्लियर व्हाट शी टोल्ड, एंड इनफैक्ट गौर गोपाल दास, अगर आपने यूट्यूब पे उनको सुना होगा तो हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत, इनफैक्ट टुडे आई रिकॉल्ड दैट मैसेज, there are something which are constant and there are something which are flexible. Constant क्या है? 1 नवंबर से एग्जाम होगा, कांस्टेंट है। तमन्ना जी पढ़ाई कब से चालू करेंगी? एग्जाम 3 घंटे का होगा, कांस्टेंट है। हम लिख के कितने देर आएंगे? तो जो कांस्टेंट है हम उसके ऊपर टाइम क्यों वेस्ट करें? तो कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट मुझे पता है कि पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। कांस्टेंट क्या है? सब्जेक्ट का कवरेज। तो अब इसमें क्या बोला कि मैं मेरिटोरियस तो हूं शुरू से, बट 10-12 का अपना स्ट्रेटेजी था, कोर्स में आते ही अपना स्ट्रेटेजी बन गया। अब ये क्या हुआ, अब मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं तो उस दिन इसको दे दिया एक होमवर्क, अब 1 से नीचे नहीं आना चाहिए। मेरे को बोलने में गया क्या, मेरे को पढ़ना है क्या? नहीं, लेकिन मैंने तो इसको दे दिया होमवर्क। अब क्या है, कहीं ना कहीं अब इसने जो अपना एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, हम तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, देखिए आए नहीं आए भगवान के हाथ में, छोड़ दीजिए, लेकिन कल इसको ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को आके वो ये बोले कि सर देखिए हम सही में मेहनत नहीं की। आज हम और कृतिका बैठ के बहुत डिस्कशन किए, कि चीजों पे सोचे, स्ट्रेटेजीज पे डिस्कशन किए, पढ़ाई किए, बहुत अच्छा है। टुडे शी हैज गॉट हर क्वालिफिकेशन इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब उसके ऊपर चलो आज नहीं आया, कल आएगा। तो रिजल्ट क्या है, हमको उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कल हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मैंने तो मेहनत नहीं की। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप डिसाइड करिए कि आपके लाइफ में कांस्टेंट चीजें क्या क्या है। कांस्टेंट 24 घंटा कांस्टेंट है। हम अब 24 घंटा में सोएंगे कितना देर, विधि जी आप डिसाइड करिए अपने देह के हिसाब से कि हमको कितना देर देह को आराम देना है। मोदी जी कितने देर सोते हैं पता है? एनी आइडिया? 4 आवर्स सोते हैं वो। बताइए, आपका जो टेंशन है, जो लेवल ऑफ टेंशन आप लेके रखे हुए, मोदी थोड़ी लेके रखे हुए हैं। हाँ, कितना बड़ा टेंशन है, बाप रे बाप। देह को सुबह उठाना है, जेपीएनआर में ढुकाना है, फिर जेपीएनआर में निकालना है, फिर उसको बस में रखना है, फिर बस से ले घर में रखना। बाप रे बाप, आराम तो चाहिए 10 घंटा उस देह को। दीजिए आराम, दीजिए। मोदी जी को टेंशन ही, राजा है भाई, एक देश के राजा है वो तो। 500 नौकर है, 50,000 स्क्वायर फुट का घर है, 40 तो गाड़ी है, पूरा फुल सिक्योरिटी है, कितना आराम आता है ना मन में, है? और 4 ही घंटा सोते। तो माय डियर, ये बहुत अच्छा मैसेज है कि आईसीआई आपके कारण कुछ भी, उसको आपका चेहरा से कोई प्यार नहीं। बी वेरी क्लियर। Although I know many children who are son and daughter of council members, president of ICI, they could not clear their exam. Many children I know personally. अगर आज ऐसा कोई मॉडल होता तो आज ये एक हो जाता ट्रेंड कि हाँ भैया वहां जाओ, आपके बच्चे कम से कम that kind of transparency, that kind of goodwill this profession is maintaining.
तो बहुत क्लियर है। आप सूरज के ऊपर देख के थूकने की कोशिश करेंगे तो थूक आपके चेहरे पे गिरेगी और कहीं नहीं गिरने वाला है। तो मत करिए कोशिश, उसको एक्सेप्ट करिए, अपने ब्रॉडबैंड को बढ़ाइए, उसको नैरो डाउन करने की कोशिश मत करिए। हम क्या उसी को पढ़ाने लगते हैं, हम उन्हीं को ज्ञान देने लगते हैं, कोर्स को कम करिए, इतना पढ़ के थोड़ी ना होता है, थोड़ा ही पढ़ के जाएंगे, थोड़ा ही पढ़ेंगे तो बस ठीक है। फिर तो हमें अपने माइंड को ये ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि जो चीजें कांस्टेंट हैं हमें उसके हिसाब से एक्ट करना है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड। सेकेंड थिंग, आज मुझे थोड़ा, जब बच्चे आप लोग इतना सुंदर सुंदर प्रॉब्लम बोल रहे थे तो मुझे अपने भी दिन याद आ रहे थे, तो मुझे अचानक से याद आया गीता। अगर आप लोग कभी भी समय मिला हो, पढ़े हो या कभी भी देखे हो, आज पूरा गीता का जो, अगर उसके स्टोरी के लाइन को हम देखें, पूरा जो उसका जो एपिसोड है गीता का, श्रीमद् भगवत का नाम सुने हैं तो सुने होंगे, सुने कि नहीं भाई? सुने। क्या है वो? अल्टीमेटली उसका क्रक्स क्या है? क्यों वो स्टोरी बनी? बोलिए, क्या लगता है? क्यों भगवान कृष्ण को इतना 18 अध्याय, लगभग इफ आई एम नॉट रॉन्ग 500-550 श्लोक्स, और जो कि आज बोलते हैं कि मैनेजमेंट के पूरे सब्जेक्ट में अगर गीता के ऊपर डिस्कशन नहीं हो रहा है तो वो मैनेजमेंट नहीं होता, चाहे वो हार्वर्ड हो, चाहे वो स्टैनफोर्ड हो, चाहे IIMs हो, कहीं भी हो, आज भी उसको हम लोग प्रासंगिक मान के यूज कर रहे हैं। क्या है वो? बोलिए। एनी आइडिया? बोलिए भाई, भाविनी पारिक, क्या है वो? अर्जुन अपने कर्तव्यों को भूल गया था। बहुत शुद्ध हिंदी बोले, एकदम गजब। चलिए, और तर्ज तो श्री कृष्ण ने क्या किया? उनको गाइड किया। चलिए, बहुत सुंदर। एनीवन एल्स? कुशाग्र? अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस हो या फिर कोई भी हमारे अगेंस्ट में कोई भी खड़ा हो जाए तो हम लोग को अपने टारगेट को नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए, वेरी गुड। एनीवन एल्स? ठीक है, जो हमको हमारा ड्यूटी है उसको याद दिलाए। वेरी गुड। एनीवन एल्स? अगर मेरे को अगर आज जो इनफैक्ट द वे शी वाज giving you this like Krishna and you all were asking questions like Arjuna, तो मुझे वो चीज थोड़ा सा कनेक्टिंग लगा। क्या कनेक्टिंग लगा? कि आज अगर आप उस पूरे एपिसोड को देखते तो अर्जुन स्टार्टेड विथ हिज प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, एंड कृष्णा स्टार्टेड addressing each problem। लेकिन उसके बाद भी जब तक अर्जुन नहीं मान रहे हैं, जब तक वो कांस्टेंट तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क, तर्क पे तर्क दिए जा रहे हैं, उसके बाद श्री कृष्ण एक श्लोक यूज करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकः शरणं व्रज। मतलब आप प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, लेकिन लास्ट में आपको अल्टीमेटली उस अलमाइटी पे बिलीव करके उन चीजों को मानना ही पड़ेगा। तो आप भी ये समझ लीजिए, प्रॉब्लम्स 5000 हैं। संतूर का अपना प्रॉब्लम है, इसका अपना प्रॉब्लम है, सलिया का अपना प्रॉब्लम है, विधि का अपना प्रॉब्लम। आप उस प्रॉब्लम्स को रख के अपने और प्रॉब्लम को ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि आपको जो गोल चाहिए, उस गोल को अचीव करने का जो रास्ता है वो कांस्टेंट है, वो क्लियर है कि आपको उसके ऊपर समय देना ही पड़ेगा,
मेहनत करना ही पड़ेगा, फोकस करना ही पड़ेगा, उसके ऊपर और ज्यादा अटेंशन डालना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कंफर्ट नहीं आ रहा है तो आपको एट द एंड ऑफ द डे अपने इंस्टिंक्ट पर बिलीव करना चाहिए। और वो बिलीव क्या कहता है, हम बनेंगे या नहीं बनेंगे। अब आपका इंस्टिंक्ट ही कहता है कि हम नहीं बनेंगे, तो आप पक्का मान के चलिए आप नहीं बने हुए। आप बी रेस्ट एश्योर्ड, जिसको जिसको भी लगता है ये मेरे सीए बनने में अगर 1% भी डाउट है तो आप चिंता मत करिए, आपका एक्शन आपके 1% को 100% बनाने में कोई देरी लगाने वाला नहीं है। वो होना ही है, वो एकदम आप राजी पिक्चर देखे? राजी देखे? उसमें एक डायलॉग है। क्या डायलॉग है? जब वो आलिया भट्ट है ना, आलिया भट्ट को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं उनके ऑफिसर्स इंटेलिजेंस वाले, वो उनको एक स्टेटमेंट देते हैं। क्या स्टेटमेंट देते हैं? कि अगर तुम्हारा इंस्टिंक्ट, तुम्हारा इनर सेंस तुमको कभी भी ये बोलता है कि तुम पकड़ा गई हो या तुम्हारे रिविल खुल चुके हैं, तुम्हारा राज कोई जान चुका है, तो तुम मानना तुम सही सोच रही हो। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये दोस्त। तो अगर आपका इंस्टिंक्ट आपको कहता है कि मेरे में 1% भी चांसेस है कि मैं सीए नहीं बनूंगा, तो आप जान के चलिए वो इंस्टिंक्ट आपको आज ही डायरेक्शन दे रहा है कि आप ये छोड़ दीजिए। तो इंस्टिंक्ट को पहले चेक करिए, क्योंकि इंस्टिंक्ट जब तक आपका ये नहीं होगा कि अरे भैया हम तो यहां पर केवल ये 400 और 420 और 450 के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं, मेरा तो टारगेट कुछ और है, उसमें तो ये एक केवल ये तो एक कंपोनेंट है, दिस इज ओनली वन कंपोनेंट, दैट्स ऑल। तो अपने इंस्टिंक्ट को पहले टेस्ट करो दोस्त। और जब आप उस इंस्टिंक्ट, ये क्या कह रही है बार बार, ये क्या कह रही है, मैं 1 2 3 में नहीं थी, लेकिन मैं ये श्योर थी कि कहीं ना कहीं तो गिरूंगी आगे। तो इसका इंस्टिंक्ट बोल रहा है, इससे बातें कर रहा है। तो दोस्त, आपसे आपका अच्छा दोस्त और कोई हो नहीं सकता है। तो सबसे पहले अपने आप को अपना अच्छा दोस्त बनाइए। गीता में कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम ही तुम्हारे दुश्मन हो और तुम ही तुम्हारे, तो सबसे इसीलिए, और ये पूरा अगर आप और ये सीए का जो कोर्स है ना, ये इसकी बड़ी खासियत है कि ये हर तीनों लेवल पर आपको बीच मझधार में ऐसा लटका देगा कि आपको लगेगा कि हम ऊपर है कि नीचे, पता ही नहीं है, कब गिर जाएंगे और कब उड़ जाएंगे मालूम ही नहीं है। मजे की बात इसमें ये है, बाकी कोर्सेज में क्या, कैट एक बार दिए डिसाइड हो गया, हाँ भैया चलो परसेंटाइल आ गया, अब आईएएम में घुस गए तो मरते मराते तो पास तो हो ही जाएंगे। आईआईटी में सेम हालत है, एमबीबीएस में सेम हालत है। बट ये जो हमारा कोर्स, और इसीलिए दिस कोर्स इज वेरी हार्डली क्रिटिसाइज्ड बाय सो मेनी प्रोफेशनल्स कि इसमें सियोरिटी बोल के कोई चीज नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, आई थिंक जो निष्ठा ने बोला है कि आप सबसे जो चीजें मानने की हैं, देखिए मानने की क्या है कि छत नहीं गिरेगा, तभी तो बैठे हुए हैं। अभी बोल देंगे छत 15 मिनट बाद जाने, अरे सर निष्ठा पिष्ठा छोड़िए, आप छोड़िए, पहले जमीन पे चलिए। मान के बैठा हुआ है ना कि ये धसेगा नहीं, माना हुआ है ना कि तुम ही इंजीनियरिंग किया है, इसका क्या नहीं, हमारा तो देखा हो तो मैं टेस्टिंग करता हमारा सिक्योरिटी आगे पहले, ऐसा तो है नहीं, मान के बैठे हुए। तो कुछ चीजें मानने की होती है, तो मानिए। क्या मानिए? हम सीए हैं, हम स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल हैं, हम काम कर सकते हैं, पहले मानिए। और जब आप मानेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? जैसे ही मानेंगे क्या होगा? आपको उसको प्रूफ करना पड़ेगा। और जब प्रूफ करना पड़ेगा तो आपको क्या चाहिए? समय चाहिए। समय है। आपको क्या चाहिए? प्लानिंग है, करेंगे। आपको क्या चाहिए? एग्जीक्यूट करना, करेंगे। एग्जीक्यूशन को क्या करना है? रिजल्ट देखना है। जो एग्जीक्यूट किया उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट में कमी है, क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे। तो 4 फैक्टर है, 4 पिलर पर आप खड़े हैं। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिजल्ट, रिव्यू।
इस चारों चीजों को आप कॉन्स्टेंटली घुमाते रहिए। क्या रिव्यू किए, अरे यार कल का प्लानिंग, इसमें क्या बोला, और नंदिनी ने भी क्या बोला था कि शरीर टूट जाए सर, रात में 11 बजे भी अगर घर आते हैं तो 15 मिनट जरूर पढ़ेंगे। आप देखिए कंसिस्टेंट। इनफैक्ट मैं क्या सीखा उसके ये बात बोलने के बाद, सुबह सुबह उठने में जब कभी 7 कभी 6:30 उठा था तो वॉकिंग करने चला जाता था, कभी 7 सवा 7 होता, लगा छोड़ो यार आज तो लेट हो गया, आज ऑफिस जा। अब मैं कम से कम वो बंद कर दिया। अब चाहे मैं 8 बजे भी उठूं तो मैं एक बार 2 किलोमीटर तो घूम के जरूर आऊंगा नीचे से। क्यों? क्योंकि मैं एक दिन अगर मैं वो छोड़ दिया, वो कल मुझे और बड़ा लालच देगा, कल वो परसों मुझे और बड़ा लालच देगा। हमें कहीं ना कहीं इसीलिए ये जो डिसिप्लिन है एवरीडे, कुछ चीजों को नैरो डाउन करनी चाहिए कि ब्रह्मा भी आके बोल दे हम इसको छोड़ने वाले नहीं, हमें ये करना ही करना। और जब आप इस तरीके से डिटर्मिनेशन, अभी आप कह रहे हैं डिटर्मिनेशन, तो डिटर्मिनेशन यही है। ये ट्रेनिंग हम लोग पिछले 1 अप्रैल से स्टार्ट किए हैं। मैं प्रोफेशन में आज 11 साल से हूँ, ये 12वां शायद से 12वां चल रहा है क्या मेरा, पता नहीं 12वां होगा 13वां होगा, क्या मना रही है तुम लोग। ये आज तक सक्सेस नहीं हुआ। हर शनिवार जो है कभी इसके कारण से बंद, कभी उसके कारण से बंद, कभी दिस 1 अप्रैल। क्या होता है ना, जब आप बहुत झटका खाते हैं ना तो आप भी धीरे धीरे सीखने लगते हैं। ये बात बहुत क्लियरली वी ऑल 3 पार्टनर नोस की ट्रेनिंग के बिना ना हमारा गुजारा ना आपका गुजारा, ये क्लियर है। तो क्या हुआ कि आज वी हैव डिसाइडेड इट। आज चाहे 31 जुलाई का, आज 3B का लास्ट डेट है, कोई बात नहीं है, जिसको अपने 2-4 जनों को बिजी रहना अपने करे काम, कोई बात नहीं। तो आपको कुछ चीजों को कांस्टेंट बनाना पड़ेगा, और जब आप उन चीजों को बनाएंगे, आप विश्वास करिए दोस्तों, उसका रिजल्ट। और आज देखिए ना, आज ट्रेनिंग का क्या फॉर्मेट है। अब मैं हूं चाहे नहीं हूं, आपका ट्रेनिंग हो रहा, कम बेसी ठीक है, मैं नहीं रहता हूं, थोड़ा फायदा उठा लेता है? तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये निकालें अपने रूटीन में से कि कांस्टेंट क्या है, फ्लेक्सिबल क्या है। नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग क्या है? क्या है नेगेटिव थिंकिंग? और और अरे कर पाएंगे नहीं पाएंगे तो बहुत अच्छा थिंकिंग। और क्या है नेगेटिव? है इतना करने के बाद फेल हो गए तो आईसीआई के लिए तो हम ही कितना बड़ा सितारा है, हमको खोज के फेल करता है, बाकी किसी के ऊपर ध्यान नहीं देगा, हम ही को देखता है खाली। देखिए नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग एक टाइम वेस्ट है, इससे ऊपर ये कुछ और नहीं है। आप नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव करने के लिए स्टेप्स अगर लेते हैं तो वहां तक नेगेटिव थिंकिंग ठीक है। मैं अभी नेगेटिव हूं, 31 अगस्त तक मेरा टारगेटेड बैलेंस शीट फाइल नहीं होगा, मैं आज नेगेटिव हूं। मैं तुरंत सारे मैनेजर्स को बुलाया, लाके बैठा, डिस्कशन किया, चॉकआउट किया, रीशफलिंग किया, एक उनको एक्शन प्लान दिया। क्या हो गया मैं पॉजिटिव। फिर बैठा मंडे, अच्छा क्या हुआ, ये हुआ। फिर नेगेटिव हो गया, अरे ये तो काम ही नहीं बढ़ रहा। फिर चेंज किया स्ट्रेटेजी, फिर पॉजिटिव में गया। वहां तक ये नेगेटिव ठीक है, और नेगेटिव की तरह कुछ हो ही नहीं सकता है, वहां बेकार है, कुछ हो ही नहीं सकता है, वहां बेकार है, कुछ हो ही नहीं सकता। क्या होगा? क्लाइंट बोले नहीं नीरज जी आप रहने दीजिए, आप बहुत बिजी है, हम लोग किसी और को खोल। तो नेगेटिव थिंकिंग को लेके बैठ जाना वो बीमारी है, वो काइंड ऑफ यू हैव गॉट बेटर ऑप्शन टू वेस्ट योर टाइम। You have got better option to waste your time by having these kind of negative thinking. I think अगर आप उसके ऊपर एक्शन लेके पॉजिटिव थिंकिंग में जाते हैं then it's very very good.
Now, Nishta, I have one question from you, जिसको हम लोग सभी लोगों को सीखना चाहिए. In fact, I want तुम उसमें अपना मैसेज बताओ. आज टॉप 3 में आना, आज हो सकता है इसका रैंक अभी वो तुम्हारे बैच में शिवानी है, दुकानिया, शिवांगी है ना. तो वो शिवांगी जो है हमारे, इनफैक्ट फ्रॉम वेयर आई हैव स्टार्टेड माय ऑफिस, संतोष जी दुकानिया उनकी डॉटर है, तो उसका 24 है. तो हो सकता है कि आज ठीक है मैं उसको भी बुला सकता हूँ, कभी वो आ जाएगी तो घर की बच्ची. मेरे दिमाग में नहीं आया, मैंने तुमको बुलाया. क्यों बुलाया भाई? कि भाई टुडे द काइंड ऑफ अचीवमेंट यू हैव दैट कमिंग योर नेम इनटू टॉप 3 मेरिट लिस्ट ऑफ इंडिया, वो भी तब जहाँ मात्र 750, मुझे लगता है कितना 500-600 बोथ ग्रुप पास हुए इस बार. 1300 बच्चे ऑल ओवर इंडिया में मात्र पास हुए, उसमें इसमें आया. बहुत बड़ा अचीवमेंट. अपने अहंकार को हम कैसे संभालें, हम उस गुरूर को, हम उस अचीवमेंट को पचाना, डाइजेस्ट करना आसान काम नहीं. यहाँ तो हमारा कोई क्लाइंट हमको हाँ कर देता काम के लिए, हमको तो उसी में लगता है बाप रे बाप हम कितना अच्छा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. आज हम, मुझे याद है जब मैं सीए बनाई था, बाप रे बाप, मुझे याद है सीए फाउंडेशन में गलती से आ गया था, आना तो नहीं चाहिए, 66% मुझे आ गया, 264 आउट ऑफ 400, तो वही होगा क्या, तो मुझे लगा अरे बाप रे बाप मैं कितना बड़ा, और वो 66 नहीं आता तो इंटर बोथ ग्रुप एक बार में पास करता. वो 66 आने के गुरूर में इंटर में मुझे 2 अटेम्प्ट लग गए. हम इसको कैसे मैनेज करते हैं? आई थिंक इस पे तुम थोड़ा सा गाइड करो. जो एक रैंक आने के बाद सब बहुत लोग मेरे को ये भी मैसेज करते हैं कि तुम चेंज हो जाओगी या जो एक ईगो एटीट्यूड आ जाएगा, बट मेरे को पता है कि इंटरमीडिएट इज़ नॉट द एंड, उसके आगे भी कुछ है, उसके आगे फाइनल्स है, उसके बाद कुछ और मेरा एम हो जाएगा. तो ये इंटरमीडिएट इज़ नॉट द एंड. अभी अहंकार करके मेरे को पता है अगर अभी मेरे को एक ईगो आ गया, एक एटीट्यूड आ गया कि आई एम एन ऑल इंडिया रैंक 2, मैं बात नहीं करूँगी, आई जस्ट टॉक टू पीपल हु आर यू नो एट दैट लेवल. तो ये एक अंदर से एक मेरे को वो बिलीव है, एक अपब्रिंगिंग है कि ये जो ईगो है ये मेरे को डुबा देगा, बिकॉज आई हैव, अब हो गया जो बोला था, 1 महीना 2 महीना इसका क्रेज रहेगा. उसके बाद मैं ऑफिस में जाऊंगी, मेरे आर्टिकल्स के साथ बात करूंगी, ऑल आर ऑन द सेम लेवल. जो शिवांगी मेरे साथ ज्वाइन किया 24, शी इज ऑन द सेम लेवल विथ मी. जो ऑल इंडिया रैंक में 40s 50s में मेरे साथ ज्वाइन किया, वी आर ऑल ऑन द सेम लेवल. मेरे को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला. 1-2 महीना तक क्रेज है, उसके बाद सब नॉर्मल है. उसके बाद मेरे को फाइनल में फोकस करना है. अभी अगर मैं ईगो दिखाऊँ, अगर अभी मैं यू नो जो जिन्होंने मेरे को हेल्प किया, अगर मैं उनको अप्रिशिएट ना करूँ कि हाँ आपका भी, मेरे सक्सेस में आपका भी हाथ है, मेरे को वापस ज़रूरत पड़ेगी फाइनल्स में, ये सब की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. तो एक खुद से एक वो थैंकफुलनेस, एक अप्रिशिएट, मतलब उनको अप्रिशिएट करने का वो है कि हाँ उनके वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, या ये ईगो की वजह से जो मैं कर सकती थी मैं वो भी नहीं कर पाऊंगी, ये मैं 100% श्योर हूँ. इसलिए जिस दिन से रिजल्ट आया, या इनफैक्ट पहले भी अगर कोई मेरा अच्छा रिजल्ट हुआ है, कभी भी ये ईगो एटीट्यूड ये सब मेरे मतलब कुछ आए ही नहीं कि हाँ कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया. ऑब्वियसली अचीव किया है, बट इतने मैं अपने हेड में उसको घुसने नहीं देती, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को आगे फाइनल्स भी है. अभी फाइनल्स के बाद कुछ और होगा मेरे लाइफ में. तो दीज आर ऑल टेम्पररी. ये रैंक का एक टैग वो मेरे साथ हमेशा रहेगा, बट इसके आगे भी कुछ है. अगर अभी ईगो में आके फाइनल एक बार में क्लियर नहीं हुआ तो मतलब वो सिचुएशन भी इमेजिन करना थोड़ा डिफिकल्ट है. तो बस वो डर लगता है कि हाँ एक इंसान का एक गुड कॉन्शियस होना चाहिए, एक पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, दैट पीपल यू नो पीपल अप्रिशिएट यू, पीपल लाइक यू. मैं किसी को अगर हेल्प कर सक रही हूँ तो हाँ सारे अभी बहुत व्हाट्सएप मैसेजेस कॉल्स सब आ रहे अभी, एंड जितना मेरे से हो रहा है आई एम ट्राइंग टू रिप्लाई देम. एंड इस एटीट्यूड में नहीं है कि टाइम नहीं है, अभी नहीं बात होगा, अभी नहीं होगा. ऐसे सबको मैं बोल रही हूँ, मैसेज कर दो, जैसे जैसे टाइम होगा आई हेल्प एवरीवन आउट, बिकॉज नाउ दिस रैंक हैज़ गिवन मी द प्लेटफॉर्म जिससे मैं और लोगों पे इम्पैक्ट कर सकूँ या अपना कुछ शेयर कर सकूँ जो उनको हेल्प करे. तो एटीट्यूड, ईगो, ये सब
सब टेम्पररी अचीवमेंट के लिए ये सब लाना इज इट्स द एंड. फिर उसके बाद डूबना ही. उसके ऊपर जब एक स्टैंडर्ड बन गया AIR2 का, उसके ऊपर AIR1 लाने के लिए अगर ये ईगो का फैक्टर आ गया तो रैंक तो छोड़ो, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एज वेल. सो वो है. ऑल्सो मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों की बातें बहुत लगती है दैट इफ आई एम गुड टू एवरीवन, there is a karma. I believe in karma. I believe in destiny. If I'm good to everyone, सबकी अच्छी बात मेरे को लगेगी. And if I show attitude now, and if someone tells कि रैंक आने के बाद एटीट्यूड आ गया, रैंक आने के बाद बात नहीं करी, तो उनका एक बुरा, उनका भी एक जो बैड वाइब्स जो ये होता है वो मेरे को लग जाएगी. मेरे को ऐसा लगता है. सो आई डोंट वांट टू टेक मेरे को एकदम ये सब पसंद नहीं. आई डोंट लाइक टेकिंग दैट रिस्क. ऑल्सो आई लाइक बीइंग द वे आई वाज बिफोर द रैंक, बिफोर आई गॉट दिस अचीवमेंट. सो वैसे ही रहती हूँ. जस्ट किसी को भी अगर ऐसा लगे कि हाँ बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया, ऑब्वियसली अप्रिशिएट दैट, बट नो दैट उसके आगे भी कुछ करना है. जो हो गया वो हो गया. उसके वजह से यू आर गेटिंग समथिंग. आई एम गेटिंग रैंक की वजह से, आई एम गेटिंग स्कॉलरशिप्स, आई एम गेटिंग दिस प्लेटफॉर्म टू स्पीक टू एवरीवन. तो आई हैव टू अप्रिशिएट दिस. ईगो में करके मैं मना नहीं कर सकती. ये सब एटीट्यूड में आगे नहीं, आई डोंट हैव टाइम, ये नहीं है, ये सब नहीं कर सकती. जो अचीवमेंट मेरे को दिया उसको अप्रिशिएट करके, जो प्लेटफॉर्म, जो अपॉर्चुनिटीज दिस रैंक हैज गिवन मी, उसको अप्रिशिएट करके उसको उसमें परफॉर्म करना, दैट इज वहाँ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए rather than being egoistic. Beautiful, and what she is saying is absolutely correct. In fact, when she spoke to me, so that point of time I told her कि हाँ मैं तुमको बुलाऊंगा, and post that मेरे को भी ध्यान में नहीं रहा. In fact, when जब मैंने इससे बात किया, she in fact asked me कि सर आपने बोला था ऑफिस आना. then immediately I, because आप लोग भी सब मेरे को कह रहे थे कि सर बैठना है आपके साथ, then I decided कि अपने इस वीक इस सेशन को जरूर करना. तो what she is saying absolutely correct my dear friend, कि आज जब हम इस जर्नी में हैं, हम जब इस टाइम को एंजॉय कर रहे हैं, तो उसमें सब कुछ आएंगे. अचीवमेंट्स भी आएंगे, सेटबैक्स भी आएंगे, और बहुत बहुत तरीके से आपको अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा. बट आज किसी एक अच्छे अचीवमेंट के लिए मैं अपना बिहेवियर खराब कर लूं, मैं अपना व्यवहार खराब कर लूं, आई थिंक व्हाट शी इज टेलिंग, एंड इन फैक्ट शी इज वेरी करेक्ट अपब्रिंगिंग, कि हमको हमारे पेरेंट्स से जो सीखने को मिला है, हम जो उनसे सीखते हैं, हम जो उनको फॉलो करते हैं, आज वही हमारे साथ आगे कैरी होती है. एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जब इस अचीवमेंट को भी हम लोगों को कैसे पानी की तरह निकालना है. तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड लर्निंग मिस्टर योगदन. Second thing, I am very happy that today you told me that you are doing yoga, Bharatnatyam, gymnastic. So I think my suggestion will be to you कि थोड़ा कम जो हो, keep carry on with these hobbies. आज भी मैंने गाना नहीं छोड़ा. हमारे ये जबरदस्ती के लिसनर्स हैं, इनको मैं पकड़ के सुनाते रहता हूँ. थैंक यू. तो आई थिंक ये हॉबीज जो है बहुत अच्छी चीज है, और इसको धीरे धीरे अपने को टू द एक्सटेंट जितना हो अपने को यूज करना चाहिए. एक चीज, नाउ वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट आज जिस प्लेटफॉर्म पे अब तुम आ गई हो, डेफिनेटली इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला कोशिश में लगे हुए हैं. 3 ट्रिलियन हम हो गए हैं. फाइनेंशियल वर्ल्ड के हम हीरो हैं. फाइनेंशियल वर्ल्ड में आज अगर हम देखें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से बड़ा हीरो और कोई नहीं है. क्या लगता है तुमको, इफ गिवन द चांसेस टू सर्व यूएस इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी, तो कोई चॉइस आएगा, या ठीक है मनी के पीछे, लक्ष्मी जी के पीछे हम चले जाएंगे अमेरिका? बताओ. हालांकि इट्स टू अर्ली टू आस्क, बट ठीक है, एक व्यू पॉइंट तो मिलना चाहिए ना. 3 साल बाद ऐसा थोड़ी ये कुछ करेगी तो पता नहीं चलेगा. पता तो चलेगा तो आज जो बोल रिकॉर्ड हो जाएगा. शॉर्ट टर्म आफ्टर क्वालिफाइंग आई स्टार्टेड अकाउंटेंट, एंड अगर अपॉर्चुनिटी मिला आई माइट गो आउट, बट आई एम वेरी कनेक्टेड टू द रूट्स, so I'll go come back to India only. I am मतलब 100% sure. रिकॉर्ड होके लिख के रख लो. I will never right now मेरा कोई प्लान भी नहीं है. neither I think of it that I have to settle abroad या मेरे को कहीं बाहर जाना है. I am very connected to the roots here. मेरी family, very close knit family, so I want to be here only. The reason I came to Calcutta from Guwahati because I have my extended family here, and that is the reason I did not go to Mumbai or Bangalore.
So going to abroad is, you know, a different level question, which I don't think I considered also that question. So I'll be in India only. Good. How you think that you can give back to society in any aspect? It's not only about education. In any aspect you think, because still if we see the literacy rate, still if we, in fact आप छोड़ दीजिए, मैं तो बोलता हूँ आप एकदम zero. आज अगर हम अपने प्रोफेशन में ही देखें, 10 लाख बच्चे, 10.5 11 लाख बच्चे आज के दिन में रजिस्टर्ड हैं. अब अगर आप पासिंग परसेंटेज देख लीजिए तो एवरी ईयर कितने सीए बन रहे हैं? 25,000 सीए बन रहे हैं. ये कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा, 35,000 हो जाएगा, 22,000 हो जाएगा. Still a large chunk of student, कहीं ना कहीं either misconception, either mentoring, either whatever problem you say, वो इस प्रोफेशन में घुस रहे but ultimately अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे. Do you think that in any way you can contribute? Firstly, to the people who are joining the course now, since everyone knows about me, या फिर you know, they can find me on various social media platforms. People have been texting me, and I'm giving a true पूरा सच picture दे रही हूँ कि this is the requirement of the course, and if you are ready to give it, then only come to this course. Yeah, or if you think you can change yourself, तभी इस course में आना. So I'm trying to guide as many people as I can, जो भी मेरे को message कर रहे हैं. Giving back to the society, I have spoken this about in my previous interviews also, that since a kid only, I had it in the back of the mind that I have to be you know, teacher. I don't know whether professionally or as a social work, because I have been very fortunate to have some amazing teachers in my life who are the reason why I am standing here today. So this thing that I have to give back to the society, and I have to be the person that those teachers were for me, maybe professionally or not, that I'm not sure, but yes, teaching will always be there. I will somehow manage that in my timetable or take it up professionally, and उससे अगर कुछ social work अगर हो सके, if some scholarship concession, I'll obviously do that. Good, definitely. What you are saying, इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है निष्ठा, and there is huge requirement, क्योंकि आज गाइड करने वाले कम हैं, मिसगाइड करने वाले ज़्यादा हैं, और मिसगाइड करने वाला कंटेंट हमें ज़्यादा इजीली अवेलेबल होता है. मिसगाइड करने वाला अपने को रिसोर्स जो है वो बहुत कंफर्टेबली मिलता है, एंड वी कैरी ऑन विथ दीज काइंड ऑफ कंटेंट्स. आई थिंक that is very much need of the hour, considering the time factor, considering all our plans and everything. So I think from my end, Gunjan, it's done now. And yeah, before that, so अच्छा एक बार तुम So I would like to request Neeraj sir to present the memento to Nishtha. मेरे से क्यों करो? दीजिए आप लोग. आ जाए इधर आ बीच. Okay, so I think a good learning session for all of us. हाँ जी? हैं? क्या हुआ? हाँ ना कुछ बोला नहीं जा रहा. Yes, sir. A big round of applause for Nishtha. And I think this kind of session just not only helping to the person who is giving exams. These are the discussions and these messages are useful for each one of us. So I think ये जो culture अपने है इसको और बढ़ाएं, इसके ऊपर और हम लोग discussion करें, इसके ऊपर और सोचें, and thank you very much for taking out of your time and speaking to all of us, and definitely in future also हम लोग ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे रहते हैं जहाँ पर तुम्हारा टाइम का जरूरत रहेगा. थैंक यू वेरी मच.